आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य में 15 अगस्त तक लागू करेंगे सभी गारंटी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कही ये बात। तेलंगाना चुनाव से पहले केसीआर को बड़ा झटका। बीआरएस के 35 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। 600 कारों का काफिला लेकर महाराष्ट्र पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। महाराष्ट्र पहुंचे केसीआर को संजय राउत की चुनौती। कहा, ऐसे ही नाटक करेंगे तो तेलंगाना भी खो देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक साथ 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की दी सौगात। कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालें। जमीयतुल उलमाए हिंद ने बकरीद के लिए मुसलमानों को दी नसीहतें। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के सरकारी कन्या हाई स्कूल में अतिथि वक्ता संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंधे के नेतृत्व में कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस संघ के सभी पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बात करते हुए अनिल कुमार सिंधे ने कहा कि पत्रकारों के सम्मान में ये एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पत्रकार समाज की हर गतिविधि को अपनी खबरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कर्नाटक के कामकाजी पत्रकार आवाज संघ चिटगुप्पा के अध्यक्ष सतीश लंबुनोर ने कहा कि अगर समाज में समस्या है तो समाचार के माध्यम से प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचें और पत्रकार की जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि ये काम संघ के सभी पत्रकार जिम्मेदारी से करेंगे। इसी तरह महासचिव राजकुमार हड़पद ने विद्यार्थियों से कहा कि आपको किसी भी तरह की समाज में कोई समस्या हो तो बिना किसी से डरे पत्रकारों से बताएं। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು। ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು 4ನೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪದನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ 4ನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆ ಅಂಗವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾನು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। सोमवार 26 जून को बसवा कल्याण के पुलिस स्टेशन में बकरीद के आगमन के संबंध में पीस मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बसवा कल्याण के सभी वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस द्वारा सभी को शहर में अमन शांति बनाए रखने की अपील की गई। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बहुत दिनों के बाद फिर एक बार आपसे पीस मीटिंग में मीटिंग के बाद से सबसे मुलाकात हुई। 4 महीने के बाद से मैं इलेक्शन की ड्यूटी में वो सरकार का आदेश है बिगड़ गए थे। और 18 महीने काम करने बहुत बंदोबस्त है। ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ CMCಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ್ದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ। ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವಾಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ। ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಿರ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿರಿ। ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡಿಂಗ್ದಾಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ನೀವಿದ್ರೆ ಸಾಕು। ನಾವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪರಿಚಯದಲ್ಲ, ನೀವಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನಾಗಲ್ಲ। ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ।
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಏನದ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲಾಖೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು बस्सा कल्याण के अंबेडकर चौक में सोमवार को बाल कार्मिक पद्धति विरोधी आंदोलन कार्यक्रम किया गया। इस आंदोलन में श्री राघवेंद्र चन्ना बसप्पा नवारू जज, बी चन्नप्पा सीनियर सिविल जज, भरत योगेश करभुदारी एडिशनल सिविल जज, जीएम सागर उपाध्यक्ष वकील संघ बस्सा कल्याण और सूर्यकांत गायकवाड़ एडवोकेट बस्सा कल्याण, त्रिमूर्ति सरस्वती डायरेक्टर RLHP मैसूरू, नागराज सिलवंत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बस्सा कल्याण, संपत कट्टी योजना संयोजक के अलावा RLHP के सभी स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। बस्सा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि हम 15 अगस्त तक सभी गारंटी लागू करेंगे, भाजपा को आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे। हुबली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेड्डी ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की अन्नभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त चावल उपलब्ध नहीं कराने के लिए राज्य के भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम मुफ्त चावल नहीं मांग रहे हैं, हम भुगतान करने को तैयार हैं, परंतु कांग्रेस सरकार को अच्छा नाम आएगा जानकर बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के भाजपा नेताओं के कहने पर केंद्र सरकार चावल नहीं देकर सौतेला रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार जानबूझकर चावल नहीं दे रही है। रेड्डी ने कहा कि परिवहन विभाग कमजोर नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। राज्य में महिलाओं के लिए परिवहन निगमों की बसों में मुफ्त यात्रा कोई बड़ा घाटा नहीं है। महिलाएं अधिक से अधिक धर्मस्थलों पर जा रही हैं। शुरुआत में ज्यादातर महिलाएं यात्रा करती थीं, अब संख्या कम हो गई है और औसतन 1,56,00,000 महिलाएं रोजाना यात्रा कर रही हैं। परिवहन विभाग लोगों की भलाई के लिए है। हमारे कर्मचारियों को यात्रियों के साथ भ्रष्टाचार से पेश नहीं आना चाहिए, यात्रियों को भी सहयोग करना चाहिए। हम सारी गड़बड़ियां ठीक कर देंगे। ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 2023ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅವರು ಕಾಸು ತಗೊಂಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ PDS ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದ್ಯಾರು? UPA ಸರ್ಕಾರ। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। सोमवार को भारत राष्ट्र समिति के पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव समेत 30 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा, कांग्रेस का दामन थामने वालों में तेलंगाना में सत्तारूढ़ BRS के नेताओं के साथ भाजपा के कुछ नेता भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जुपल्ली कृष्ण राव दोनों अपने समर्थकों के साथ जुलाई के पहले हफ्ते में एक रैली को संबोधित करेंगे। ये समारोह तेलंगाना के खम्मम में राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता भट्टी विक्रमार्क भी शामिल हो सकते हैं, जो तेलंगाना में पैदल मार्च निकाल रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंट्री गेट संख्या नंबर 9 के पास सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधा शुरू की गई है। सोमवार को एयरपोर्ट अधिकारियों की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है और जिसमें ये जानकारी दी गई है। एयरपोर्ट पर 8 पूर्णत स्वचालित सेल्फ बैगेज मशीनें लगाई गई हैं। GHIAL ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि ये मशीनें स्कैनर, स्केल और सेंसर से लैस हैं, जो यात्रियों को 45 से 60 सेकंड में अपना सामान चेक इन सुविधा पूरा करने में सक्षम बनाती हैं। यात्री अपने बोर्डिंग पास को प्रिंट करने के लिए सेल्फ चेक इन क्यूसेक से संपर्क कर सकते हैं। क्यूसेक पर वे बैगेज विकल्प का चयन कर सकते हैं, सभी आवश्यक विवरण प्रदान कर सकते हैं और बैग टैग प्रिंट कर सकते हैं। बैगेज टैगिंग के बाद यात्री सेल्फ बैग ड्रॉप यूनिट में जा सकते हैं, जहां वे कन्वेयर बेल्ट पर सामान रखते हैं और प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने बोर्डिंग पास पर बारकोड को स्कैन करते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इकाई सामान की जांच करती है और यदि सब कुछ ठीक हो तो एयरलाइन या चेकिंग स्टाफ को
पुष्टि भेजती है। यदि सामान आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो इकाई इसे अस्वीकार कर देती है और एक चेक इन एजेंट मदद के लिए आगे आता है। अतिरिक्त सामान होने पर यात्री को एयरलाइन के बैगेज काउंटर पर जाना होगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं।
बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत कर दी है। केसीआर कैबिनेट सदस्यों, पार्टी विधायकों, सांसदों और अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ हैदराबाद में मुख्यमंत्री के आधिकारिक शिविर कार्यालय प्रगति भवन से रवाना हुए। इस काफिले में 600 कारें और 2 बसें शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर मंगलवार को महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर में पूजा अर्चना की। राव की ये तीर्थ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ी एकादशी से 2 दिन पहले हुई है। बीआरएस नेता ने बताया कि भारत राष्ट्र समिति के नेता और उनके कैबिनेट सहयोगी सोमवार को 600 वाहनों के साथ पंढरपुर पहुंचे। राव की ये यात्रा महाविकास अघाड़ी यानी MVA नेताओं द्वारा महाराष्ट्र में गंभीर दबाव डालने के उनके इरादों पर सवाल उठाने के बाद हुई है, जिसमें कहा गया है कि ये भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकता को कमजोर कर सकती है। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके एक्स MP कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या पहले हैदराबाद से ही MIM के OBC यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों हो रहे हो भाई? हमको कोई फर्क नहीं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। Wisdom Group of Institution, Bidar.
बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775,
8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी रानी कमलापति से जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी 4 ट्रेनों का वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही देश में कुल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है और गोवा, बिहार और झारखंड को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हुए इस कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने सोमवार को मुस्लिम समुदाय से ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने का अनुरोध किया है। ईद उल अजहा को कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। गुरुवार को यह त्योहार मनाया जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की रजा और उसके आदेश का पालन करते हुए अपने अपने देशों के कानूनों के अनुसार जानवरों की बलि देते हैं, यानी कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी देने की परंपरा सदियों पहले शुरू हुई थी, जब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए मुसलमानों को चाहिए कि वे जानवरों की कुर्बानी करते समय एहतियाती कदम उठाएं। उन्होंने जानवरों की कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने का अनुरोध किया है। मदनी ने सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने और ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं करने का अनुरोध किया है जिनकी कुर्बानी जायज नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य में 15 अगस्त तक लागू करेंगे सभी गारंटी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कही ये बात। तेलंगाना चुनाव से पहले केसीआर को बड़ा झटका। बीआरएस के 35 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। 600 कारों का काफिला लेकर महाराष्ट्र पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। महाराष्ट्र पहुंचे केसीआर को संजय राउत की चुनौती। कहा, ऐसे ही नाटक करेंगे तो तेलंगाना भी खो देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक साथ 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की दी सौगात। कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालें। जमीयत उलमाए हिंद ने बकरीद के लिए मुसलमानों को दी नसीहतें। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।